भी देखो कितने ये फोन भी आ रहे हैं और सर ये सारा सब कि भाई साहब मैं कैसे ज्वाइन करूं। चलो एनीवे सर लेट्स स्टार्ट, क्योंकि सर को 6 बजे जाना है। Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on recent amendment in Companies Act and DPT3, and on this subject our very respectable honorable Central Council member CA Pramod Jain ji with us. I welcome Pramod Jain ji. Welcome sir. I also welcome Jagjit ji, Damija ji, Pava Saab, Raman Khathuwala ji, Rajiv Kohli ji, and all the other attendees. As you know that there is no need to introduce him, but still my duty to introduce him very briefly. Pramod ji is a commerce graduate, BCom honors from Sri Ram College of Commerce. He is holding all the 3 prestigious degree, FCA, ICWA, company secretary. He is also a Bachelor of Law, LLB, Qualified Information System, DISA, ICI. He is also a member of All India Management Association. He is also an insolvency professional. He has also passed the proficiency self-assessment test for independent directors data bank. Also passed certification course NCFM of National Stock Exchange of India. He has also done certification course CAAT of ICI CAT. He has also done post qualification course on valuation of ICI. He has been elected as Central Council member of ICI for the period 2019-2021. Apart from being member in more than 25 committees, Group Directorate of ICI, he is a chairman of Valuation Standard Board and CSR Committee of ICI for the year 2021, member of ICI Disciplinary Committee Bench 1 for the year 2021, and vice chairman of Directors Committee for year 1920 and 2021. He has been nominated as member of Quality Review Board for 3 years from 20 to 2022. He has delivered more than 1,000 lectures and articles on various topics of income tax, corporate law, LLP, audit, peer review, quality review, etc. at more than 150 forums throughout the country. He has also authored so many books on chartered accountants, documentation, compliance for audit and review, limited liability partnership, a complete resources book, chartered accountants, documentation and compliance for audit and review, for importance of LLP after Companies Act 2013, chartered accountants, documentation and compliance under Companies Act 2013, peer review and quality review, limited liability partnership, law, procedure and taxation, documentation for chartered accountants, limited liability partnership, law and procedure with Reddy Reckner, fringe benefit tax and banking cash transaction tax, documentation for audit and accounting standard and CARO. He has written various articles on taxation, company law and audit in various journals. He has a vast practical experience in taxation, audit and corporate law field, and he has been giving consultancy to various corporate and non-corporate entities on taxation matter. But apart from this, we all know before GST there was a service tax, and government so many came with amendments कि ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है. बाद में गवर्नमेंट भी परेशान होगी, उन्होंने नेगेटिव लिस्ट तैयार की. ये नेगेटिव लिस्ट में ये टैक्सेबल नहीं है, बाकी सब टैक्सेबल है. तो ये मैं हमेशा कोट करता हूं सर के लिए कि सर के लिए भी यदि हम नेगेटिव लिस्ट तैयार किए हैं तो उसमें सिर्फ जीएसटी आएगा, बाकी सब सर से कुछ भी कहीं से भी पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, तो नेगेटिव लिस्ट में सिर्फ जीएसटी है सर, जीएसटी पे नहीं बोलते, बाकी सब कहीं से भी कैसे भी पूछ लो सर. और सर हमेशा तैयार रहते हैं, ऑलवेज ऑन ए फोन कॉल. सो विद दिस सर आई वेलकम यू सर एंड ओवर टू यू. थैंक यू राजेश भाई. आपने तो अच्छी सी एक हंसा दिया लिटरली the way you introduced that. Thanks a lot for the very kind words. जगजीत जी, रमन खाटूवाला जी, हेमंत पावा जी, सुनील दमीजा जी, राजीव कोहली जी, and all my dear friends, सबको मेरा नमस्ते on this Monday evening 4 to 6. राजेश भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. मेरे ख्याल से जितना नॉलेज डिसेमिनेशन में राजेश भाई ने सहयोग दिया है इन द लास्ट 2 years, यू नो, जब वो फिजिकल कराते थे तब भी फिजिकल इतने सारे प्रोग्राम्स होते थे राजेश भाई के, और अब जब से ये डिजिटल हुआ है तब तो
कोई ऐसा मेरे ख्याल से 6 days a week का सेमिनार शायद हो रहा हो। So really सर टाइम भी तो appreciate पास राजेश। करना है ना, टाइम भी तो पास करें, कैसे टाइम पास करें सर? नहीं, बट जो आपके ये एफर्ट्स है ना, दैट टू मेक द नॉलेज अवेलेबल टू मेंबर्स एट लार्ज, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड, बिकॉज अल्टीमेटली इसमें बेनिफिट सभी का ही है, सभी का बेनिफिट है। सो रियली डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, सो माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू राजेश भाई। राजेश भाई से बात हुई थी, तो यस, टॉपिक which we'll be discussing in this time allotted is amendments in the Companies Act. I'll be talking about certain amendments and also about Schedule 3 and also about DPT 3. Loans, deposits किससे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते, उसकी कुछ clarity. So I'll be sharing a presentation, and further, if you have any query, please post in the chat box. Or if I have a query, I'll ask you, give the answers in the chat box. So both ways it will go. और उसी वजह हम स्लाइड वाइज चलेंगे। अगर हमारे स्लाइड्स कंप्लीट ना भी हों, पर जितनी हमने की हैं उतने के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, that is much more beneficial than just completing the slides. This is my personal view. So I'm sharing my presentation. Recent changes in the Companies Act, and the first change which I like to discuss about here is relation to the budget speech of the Honorable FM, and that on company law. कभी सुना है कि budget speech के अंदर company law की बात होती है? I read once, not heard, I read once the amendment in the Companies Act to the Finance Act 4 or 5 years ago, where the limit for contribution by the political party was removed through the Finance Act in the Companies Act. And this year I heard in the union budget speech about the corporate laws. To my memory, one of the first times. And are these important? In my view, these are very, very important, not only from the point of view of the corporates, but also from the point of view of the professionals. There is a huge professional opportunity in what the changes have been done. And both the changes, though very simple, but very near to my heart, because I've been trying this since 17 number of years. Since, in fact, since this Companies Act 2013 came into picture, since 2014. जब से समझ में आया Companies Act 2013, उसके बाद से उसको follow up कर रहे थे. And पहला amendment is very, very important, that the change has been made in the definition of a small company. ये small company होती क्या है, इसका क्या benefit है? Let us understand in few minutes. सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि small company which is defined under section 2 subsection 85 and up to 31st March 2021 it says that any company other than a public company, any public company small company नहीं हो सकती, any company other than a public company which is not a holding or subsidiary, यानी private के अंदर भी holding और subsidiary बाहर, और section 8 company वो भी बाहर, right? So other than these, if any company's paid up capital is less than 50 lakhs and turnover is less than 2 crores, then it is a small company. दोनों conditions met out, यानी अगर capital 50 लाख क्रॉस कर गई तो small company नहीं है, turnover क्रॉस कर गई 2 करोड़ तो वो small company नहीं है. ये 31st March 21 तक के लिए. But if I see the act, the definition under section 2 subsection 85, it says it should not exceed 50 lakhs, not exceeding 5 crores, and turnover not exceeding 2 crores, which may extend to 20 crores. So what I have been trying to say to the Ministry of Corporate Affairs, PMO, ease of doing business, कि आपने ये हायर लिमिट दे दी 5 करोड़ 20 करोड़ की कैपिटल और टर्नओवर की, यानी कि मैं अगर ये लिमिट बढ़ाना चाहूँ स्मॉल कंपनी की 20 करोड़ तक, तो मेरे को कहीं पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं, एक नोटिफिकेशन निकाला, डेफिनेशन चेंज की, टर्नओवर हो गई 20 करोड़. काइंडली डू इट. 2 करोड़ क्या होती है टर्नओवर? कुछ भी नहीं.
But in 2018, this limit of 5 crore was increased to 10 crore and this 20 crore to 100 crore. Again, I wrote, I said, you know, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, but at least I gave that thought process कि आप ये कर रहे हैं, आपने 100 करोड़ कर दी, पर 20 करोड़ तो पहले ले आओ. And this time in the union budget speech, when Honorable FM spoke, I was really delighted because now this limit has been increased with effect from 1st April 2021. Already notification there. ये paid up capital अब 2 करोड़ तक की कंपनियां, small company, from 50 lakh to 2 crore and from 2 crore turnover to 20 crore. यानी कि इस साल मार्च 22 के अंदर मेरी कंपनी जिसकी की टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे है, दैट वुड बी अ स्मॉल कंपनी. कैपिटल नॉर्मली 1 लाख ही रखते हैं. सो व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट्स आर गैलोर. लाइक सबसे पहले तो ऑफ कोर्स द वेरी बेसिक व्हिच एवरीवन नोज इज द लेस कंप्लायंस. 4 मीटिंग की जगह 2 करनी है, ठीक है, कर लेंगे. 4 की जगह 2 कर. Apart from that, then there is no requirement to get the annual the return, the ROC forms to be certified by a professional. File professionally karte hain normally because the promoters, the directors, they are not aware of how to file, what to file. But the verification, the certification of the professionals, company secretary, chartered accountant, cost accountant, that would not be required, right? Apart from that, for a small company, there would be no CARO, no IFC, no cash flow statement. जरूरत ही नहीं है. Of course, consolidation भी नहीं होगा कि holding subsidiary हो नहीं सकती. Right? So all these benefits. इसके अलावा ये तो हो गया. उसके अलावा अगर मेरी ये जो annual filings होती हैं, उसकी अगर मैं delay करता हूँ तो late fee तो लगती है, but there can also be a penalty. For the small companies, for these 3 documents, annual filing, not annual filing, 3 filings, AOC4, MGT7 and MGT14. MGT14 was special resolution. For all these 3, the penalty would be half, 50%. Another professional opportunity. That in case, because कई लोग शुरू में ना ऐसी कंपनियां बना ली, पर वो कंपनियों में फंड्स रखे हैं, सोचते हैं कि उसको एलएलपी में कन्वर्ट करें, उसको इधर से उधर लोन दे दें, फंड्स दें, क्या करें. 185 आता है, 186 आता है, 73 का इशू. So now the section 233 of the Companies Act says that 2 or more small companies can merge through the fast track merger scheme, where these small companies need not go to NCLT but can apply to regional director to merge. So छोटी companies को you can go and apply and for the merger. अब इस साल मार्च 22 में इस साल मेरी अगर टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे है तो next year I can go and apply and get those companies converted. So the fast track merger scheme. So a huge benefit, a huge professional opportunity, unless we know that it is there and we are ready to venture into such activities. The second change, and the second one is giving more professional opportunities. What is that about? That is about 1% company. Again, the changes are there with effect from 1st April 2021. पहले OPC पहले भी थी. Yes, OPC is 1% company, single shareholder, can have a single director, same shareholder, same director, no second person required. But उसके अंदर इशू ये था, उसके अंदर लिमिट यही 50 लाख की कैपिटल और 2 करोड़ की लिमिट थी. यानी 2 करोड़ की मेरी टर्नओवर क्रॉस हो जाएगी तो आई हैव टू ऐड अनदर पर्सन. ये कहता है मैं अनदर पर्सन ऐड कर सकता होता तो शुरू से ही मैं प्राइवेट नॉर्मल कंपनी बना लेता ना. मेरे पास तो दूसरा पर्सन है नहीं, इसीलिए मैं ओपीसी नहीं बना. But now what has been done? They have set these limits done away with. No limits requirement. यानी कि अब ओपीसी की टर्नओवर 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ कुछ भी हो सकती है. Isn't this a big opportunity to incorporate a OPC? And second, another one should know about it. पहले क्या था कि कौन incorporate कर सकता था?
इनकॉर्पोरेट कर सकता था एन इंडियन सिटीजन हु वाज अ रेजिडेंट. रेजिडेंट मींस जो कि इंडिया में 182 दिन से ऊपर रहता है. एक तो ये रेजिडेंसी की डेफिनेशन चेंज की फॉर द 1% कंपनी ओनली, फॉर द 1% कंपनी ओनली, कि मैं 182 दिन की बजाय 120 दिन भी इंडिया में रहूंगा तो मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा एंड आई कैन रिमेन दैट डायरेक्टर. बट अनदर थिंग what they have done, that Indian citizen even with a non-resident can now form an OPC. अब आप कहो जी नॉन रेजिडेंट है, एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए, क्या करें? डायरेक्टर तो एक से ज्यादा रख ही सकते हो, शेयर होल्डर एक होता है, डायरेक्टर तो कहना मोर देन वन. So you can do that, and of course for resident to be in India for 120 days instead of 182 and no limits. पहले 2 करोड़ क्रॉस करते ही आपको कन्वर्ट कराना है, एक और शेयर होल्डर ऐड करना है, एक और डायरेक्टर ऐड करना है, वो सब खत्म. Another thing, even an existing private limited can be converted into OPC without those limits. Now these limits are not there ना. 100 करोड़ की है, अभी भी मैंने एक एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना रखा है, शेयर होल्डर बना रखा है, स्पाउस को बना नहीं सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी रीजन है, बनाना नहीं चाहता तो भैया मैं बिजनेस के कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहता, बट आई वांट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. So yes, convert it now and single form INC6 for both ways conversion can be done. तो मैं OPC के मेरे को फायदे क्या है ये तो बताओ. Ultimately I'll have to sell it to my customers. देखो सबसे पहले तो आप ये समझें कि मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता हूँ और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, दोनों के अंदर प्रोफेशनल को किसको फायदा है? I need not explain that. But any consultancy which I do, I am of the view that it should always be a win-win situation. It should not be a win-loss situation. कि सिर्फ प्रोफेशनल का फायदा हो, असेसी का नुकसान. Unless the असेसी का भी फायदा हो, that proposition is not going to last forever. So what is the win-win situation? So we have to put this structure before a person who wants a limited liability and doesn't have the another person to add as a shareholder or director. सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है. Those persons who are single, just starting their profession or business, and they want to have that designation as a director on their business cards, because they say I want to go to MNCs, I want to go internationally, and they don't recognize individual Pramod Jain, nothing. Okay, Pramod Jain, OPC Private Limited, okay, Private Limited Director, okay, done. At least allowed. So there are certain places where it is required. So that directorship with the limited liability is there. Another thing which is here is succession planning, which is not there anywhere else. Because here, what is the situation? What is the procedure? The procedure is that in the case of 1% company, the shareholder would, in the articles, mention the name of the nominee, that after him, who shall be the new shareholder or director. Can that person be changed? Yes, that person can be changed. Yes, that person can be changed. So limited liability, succession planning, directorship, all those things, corporate structure, it is there. Apart from this, income tax benefit, क्या सोल प्रोप्राइटर अपने आप को सैलरी दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है? नहीं. यहाँ पर एक ओपीसी इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इंडिविजुअल, यू कैन नो व्हाट आर द टैक्सेस बेनिफिट्स. सैलरी दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं लोन के ऊपर, एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हैं तो 15% का टैक्स, नॉर्मल में 22% का टैक्स. ऑफ कोर्स ऐड द सरचार्ज एंड ऑल दोस थिंग्स. Yes, being just like it is just a private company. So in that case, the balance sheet is required, audit is required, even if the turnover is very low. So all those things are there. The loans, deposits, conditions would be there.
Yes, it is there. Compliance have to be in time. So only for those who want to grow big and work into the corporate structure. So in the coming times, when the new younger generation is coming with the more ideas of startups and all those things, कहता अकेला नहीं कर सकता, किसी को साथ ऐड करो, there you can give this suggestion. Any question on this small company or OPC, please? रमू जी, Yes, sir. सर अगर मान लीजिए कोई कंपनी की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 18 करोड़ की है और उसकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, will it qualify as a small company for 2021 now? कहने का मतलब क्या मेरे को उसकी CFS की रिक्वायरमेंट आएगी अब 20-21 की बनाने के लिए? बिल्कुल आएगी, क्योंकि 21 के लिए लिमिट तो 50 लाख और 2 करोड़ की है. अच्छा, 21 के लिए वो स्मॉल कंपनी है. एक क्वेश्चन था सर अभी कि ओपीसी के लिए एमडीटी फाइल करना है. बिल्कुल फाइल करना होगा, बिल्कुल फाइल करना होगा. एग्जेम्पशन नहीं है सर, कंप्लायंसेस सारी है, प्रोफेशनल्स की फीस सारी मिलेगी सर. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ना बेसिकली. जी सर, जी सर. बट ऑफ कोर्स देयर आर एजीएम नहीं होगी. हाँ, एजीएम नहीं होती. आई एग्री, बिकॉज फॉर एजीएम यू नीड 2 पर्सन्स. But there is just noting, he will just note it down and that is final. Whatever he says is final. So that way it is simple. Compliances are very less. But everything, the compliance has to be done in time. ये उन्हीं के लिए है. तो also the new accounting standards for small companies would be beneficial for this category of companies. नहीं सर, राजीव भाई ऐसा नहीं है. पहली बात तो कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया. अंडर प्रिपरेशन है सर, कह तो रहे हैं संजीव सिंघल जी, हम करा रहे हैं सर. कंपनीज के अंदर कुछ भी आएगा तो वो नफरा के थ्रू आएगा. Definitely sir, but then the step is in the right direction. We can press for that because compliances for small companies are too many. सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज नहीं होंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. और अभी की डेट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या वो कॉम्प्लेक्स है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IFRS. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IFRS. अभी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यस. सो यस, राजीव जी जो कह रहे हैं कोहली साहब, यस राइट, ठीक है. सो दैट वे वी कैन so many benefits. So मतलब it is just a selling point. So many selling points. सही कह रहे हैं राजीव. एक क्वेश्चन है, can existing proprietorship firm be converted into OPC? You know, the thing is that under the Companies Act, when we talk about the conversion through the Companies Act, it is not possible because of the reason that for the conversion they say it has to be at least 2 shareholders or directors. Earlier they used to have only a 7-member public company, but after our consistent pursuance, they allowed 2 persons. Now again we will request to allow the OPC to convert a proprietorship into OPC, but under income tax the benefit is there. So what we can do, that incorporate OPC with the object of taking over an sole proprietorship, and then we can have that income tax benefit also, right? Sethi ji ka question hai, since restriction of turnover capital removed now for OPC, it will cease to be a small company if threshold is breached. Sir, OPC और small company में OPC is much better ना. OPC के ऊपर तो स्मॉल कंपनी, जैसे मान लीजिए स्मॉल कंपनी की टर्नओवर, एक कंपनी है जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ है प्राइवेट लिमिटेड में, तो इन दैट केस it doesn't remain a small company. But if it is an OPC, no issues at all. OPC में तो compliances ही नहीं है, वो सब कुछ लगेगा ही नहीं, कारो वारो कुछ नहीं लगेगा, right? चलिए आगे चलते हैं. Now we all are aware of this extension of what we say forms. हमको आदत हो गई है इतनी सारी एक्सटेंशंस के, हम कहते हैं भैया ड्यू डेट बढ़ गई. बट प्लीज नोट वेरी केयरफुली,
We are all professionals, so we should understand the finer differences. Under Companies Act, you have seen that dates are for the filing of the forms have never been extended. For filing of the forms have never been extended. The due date remains the same. The only benefit which is given, is that the forms can be filed without additional fee. तो फॉर्म्स की ड्यू डेट चेंज नहीं हुई है, सिर्फ फाइलिंग के लिए मेरे को एडिशनल फी नहीं लगेगी. देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ, and we as a professionals to understand that qualitative difference. And of course, not changes in the due date of forms, but the forms can be filed without additional fees. And where for the forms CHG 1 and 9 जो भी 1 अप्रैल 2021 को पेंडिंग थी और and which were required to be filed from 1st April 21 to 31st May, they can be filed by 31st July with normal fees. And also they said that in the COVID we are not able to meet, so between 2 board meetings for the first 2 quarters of financial year 21-22, the gap they have relaxed by 60 days. यानी 180 दिन के बजाय 180 दिन के अंदर आप 2 क्वार्टर के बीच में डिफरेंस रख सकते हैं instead of 120 days. And then this circular said that of course relaxation of all forms except CHG 1, 4 and 8 and LLP Act, which are to be filed between 1st April 21 to 31st May, they can be filed by 31st July. Now this form said about this, यानी एक तो पुराने वाले कवर्ड नहीं है, यानी जो फॉर्म मेरे को अप्रैल से मई के बीच में फाइल करने थे सिर्फ उन्हीं की एक्सटेंशन है, Now when they say all forms in that circular, but when the list initially came, it did not include any LLP form, it did not include the major ROC forms. The final form, the list currently which is there is of course CHG 1, CHG 9, which is for the charges. Then ADT 1, ADT 3 is not there. ADT 1 is there. INC 22 is there. INC 22 is there. INC 20A is not there. For the new company, within 180 days you have to file. NDH 3, FC4 is there. Return for dormant companies, it was due within 30 days. So now that has been, now you can file without additional fee, because the additional fee here is very, very high. INC 27, conversion of public company into private or private into public. NDH2, IEPF 3, AOC4, NBFC, and AOC4 XBRL. So these can be, because certain companies had their AGM very late, even beyond December. Of course, they can go for compounding. MGT7, earlier MGT7, AOC4, they were not there. LLP Form 3 and LLP Form 11, which was due on 30th May. Now that has been extended. ये पहले ये भी नहीं था. DIR 11, DIR 12 is not there. MGT 14, filing of resolution, it is there. So all forms are not covered. All forms are not covered. So I should be aware of it while advising my client. और ADT 3 भी नहीं है. So backdate resignation भी अभी करेंगे तो penalties applicable रहेंगे. Any question on this forms? No question, no question. Rajesh Harjika ji ka question है, what happens in case OP is the only director expires? So that directors must also be the shareholder. So it is given in the articles of association that after him, who would become the director or the shareholder. So that is there in the articles. So he would become. Now CSR compliance. Yes, CSR compliance. Actually देखा जाए तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में आया हुआ तो बहुत टाइम से था, बट वाज नॉट मेड एप्लीकेबल, एंड दिस वाज मेड एप्लीकेबल ऑन 22nd of January 2021. और ये किनको एप्लीकेबल है? ऑफ कोर्स जिन कंपनी को ये 3 कंडीशंस में से कोई भी एक मीट आउट हो जाती है, यानी कि नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं. आप चेक कीजिएगा, मार्च 21 के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हुए हैं. 20 में भी इंक्रीज हुए, 21 में भी इंक्रीज हुए.
So if any of these three conditions are met, then they have to constitute a CSR committee. If in case they have to spend more than 50 lakhs and spend at least 2% of the average net profit. अभी तक क्या था, मार्च 20 तक, 31 मार्च 20 तक क्या था? It was only that either you spend, and if you don't spend, kindly explain in the director's report why you did not spend. Now, in the director's report for March 31st March 21, ये जो बैलेंस शीट फाइनल करेंगे, please take care. Apart from giving the reason for not spending, just take a second. Hello. एक सेकंड, जस्ट प्रेसिडेंट ऑफिस फोन, एक सेकंड. हाँ जी, 11 बजे, ठीक है, ठीक, ठीक. सॉरी. यस, तो अब 31 मार्च 21 के लिए क्या करना? Apart from disclosing in the director's report the reason for not spending, I have to transfer the fund to a Schedule 7 fund, abhi existing Prime Minister Relief Fund, Prime Minister Care Fund, or what I would say, Clean Ganga Fund, Swachh Bharat Fund, ऐसे funds के अंदर within 6 months for not an ongoing project. और ongoing project है यानी लंबा project है 3 साल तक का, in that case within 30 days I have to open a special account with a banker, that unspent CSR amount, and spend that within 3 years. And if you don't spend within 3 years, then the transfer to Schedule 7 fund within 30 days. Now here for 31st March 21 I have to create a provision. इससे पहले मैं provision create नहीं करता था, अब करना पड़ेगा. And take my point, this is to be reported in Caro for 2022, not 21, but 22 के Caro में आएगा कि ये ट्रांसफर किया कि नहीं किया ये, और ये शेड्यूल फंड में गया कि नहीं गया. Caro में ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना होगा. Of course, these companies, Caro would be applicable, right? And if this is not done, the funds are not transferred, then the penalties are huge. Right? Any question on CSR? No. Great. Chalo. Next one is audit trail. Audit trail का मतलब है क्या? अभी क्या प्रोसेस था, तो उसके एविडेंसेस. अब सबको ये पता है कि हाँ ऑडिट ट्रेल आया कि फॉर द अकाउंट्स बिगिनिंग 1 अप्रैल 2021. तो बहुत हाई हल्ला रहा, और उसके बाद आया कि नहीं, एक्सटेंडेड बाय 1 year 1 अप्रैल 2022. A sign of relief. But what is this audit trail? You know, if I talk about this, अगर हम अपना टाइम याद करें, प्रायर जो भी मेरे कंटेम्पररी या सीनियर्स हैं, कि जब कंप्यूटर थे ही नहीं, मैनुअल बुक्स हुआ करती थी, तब हार्ड पेपर किताबें होती थी. हार्ड बाउंड के अंदर क्या कोई एंट्री डिलीट हो सकती थी? वो तो सिर्फ रिवर्स ही हो सकती थी. क्या मैं एंट्री ऐसे कर सकता था कि भैया इकट्ठी 10 लाख की एंट्री कर दो, बाद में 10,000 पर डे कर देंगे? नहीं हो सकता था. Now, what was the basic in the accounting? It is there. So audit trail, it would be there. And the duty would be there of the auditor. कंपनी की तो है, कंपनी तो कहता हाँ जी मेरे पास ऑडिट ट्रेल है. ऑडिट ट्रेल है तो ऑडिटर की ड्यूटी है उस ऑडिट ट्रेल को चेक करना, and then give his view whether books of accounts are properly maintained or not. See, the duty has been cast on the auditor. But if I talk about, हम कहते हैं तो सिर्फ कंपनीज के लिए, मेरे पास तो कंपनीज बहुत कम है. ये ऑडिट ट्रेल जब आएगा तो सॉफ्टवेयर में आएगा, टैली, बिजी, सभी में आ जाएगा.
तो क्या आप कंपनीज को अलग मेंटेन कर लेंगे और प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपीज को अलग कर लेंगे? पूरे सॉफ्टवेयर में होगा। तो रोल ऑफ द ऑडिटर वुड बी देयर। प्लीज सी टू peruse this audit trail and mark his observations that whatever has been coming into the exception reports of the audit trail, nothing is adverse to say that the books are not maintained in a proper way. मेरे को उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी ही करनी पड़ेगी। I have no option. So please tell to the clients to have this habit कि ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आज एंट्री की, डिलीट कर दी। कंप्यूटर तो डिलीट करते हैं, कहाँ पता लगता है, वो वाली बात खत्म। So change that system. Change that system. Right? Any supplements on this audit trail? नहीं। चलिए। Great. Now going further with the Schedule 3 amendments. ये Schedule 3 का, हाँ बोलिए। अरे एक क्वेश्चन था प्लीज सर। हाँ बोलो ना। के ऊपर ही सर, इसमें जो डेट है 1 अप्रैल 2022, so that is from this date it is basically for the reporting purpose or just to maintain the books of account according to this audit trail? Maintaining the books of accounts. Maintaining, it means the reporting would be in 2023. Yeah, audit trail का। क्योंकि मार्केट में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है इसी को रिलेटेड कि आपका रिपोर्टिंग जो होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं जी। मेरे को बुक्स ही मेंटेन 1 अप्रैल 22 से करनी है ना उसकी। हाँ वही क्योंकि इसमें कईयों ने ये बोला लेकिन जगजीत जी, अच्छा क्वेश्चन इस एंगल से है कि मान लीजिए जी टैली ने अभी यूज कर दिया ऑडिट ट्रेल। जब मेरे सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल है तो मैं जब 21 की या 22 की भी ऑडिट करूंगा तो मेरी ड्यूटी तो आ जाएगी ना। बिल्कुल वो हमारे लिए एक बेस ईयर बन जाएगा। बेस ईयर फर्स्ट ईयर उसका कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसमें मेरी ऑडिट ट्रेल 2 साल की कंपैरेटिव हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऑडिट ट्रेल टोटली डिफरेंट है सर। ऑडिट ट्रेल इज टोटली डिफरेंट। ऑडिट ट्रेल इज डिफरेंट। ऑडिट ट्रेल की जो बात है वो सॉफ्टवेयर के लिए है, वो 1 अप्रैल 22 से है। जी। बट उसमें क्या होता है सर, बड़ी कंपनीज में जब क्या होता है, बड़ी कंपनीज के जब ऑडिट ट्रेल के ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है, उसके एनालिसिस किए जाते हैं कौन से में कितने ये वाउचर्स डिलीट हुए, किसने किए, कौन ऑथराइज्ड था, इसके ऊपर भी एक सेपरेट ऑडिट होता है बड़ी कंपनियों में। हाँ, तो यहाँ पर भी सब छोटे में भी करना पड़ेगा पॉलिसीज के ऊपर जी। और मुझे बताया, मैं जीएसटी करता नहीं, बट मेरे को किसी ने बताया कि जीएसटी लॉ में ऑलरेडी मैंडेटरी है ऑडिट ट्रेल। Yes sir, GST में already mandatory audit trail, and basically all SAPs ERPs have the audit trail, and even in Tally it is there. People don't flag it. Otherwise you can have the internal control audit trail in Tally itself. Yes. Thank you sir. बिल्कुल। चंद्रशेखर जी का एक क्वेश्चन है, CSR not spent, whether any remedy available? Further, its shortfall relates to earlier years, then what will be the situation? देखिए, अगर मार्च 21 में जो ड्यू था वो आपने पे नहीं किया तो आप सरकार को दे दो। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, देयर इज नो अदर वे आउट। देयर इज नो अदर वे आउट। नाउ यू हैव टू स्पेंड, राइट? आपने प्रोविजन ही नहीं किया, आपने कहा मुझको खर्चा करना ही नहीं है 19 का, 20 का, 18 का, तब बात अलग है। बट आपने कहा मैं करूंगा, मैंने प्रोविजन कर रखा है, तो आपको करना पड़ेगा। आत्मा सर यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि सपोज उन्होंने खर्च भी नहीं किया और पीएम रिलीफ फंड में भी नहीं दिए, तो ऑडिटर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और तो मेंशन करेंगे कारों में। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनकम टैक्स कुछ नहीं करेगा, एमसीआई करेगा जो पेनल्टियां लगानी है। वो है आपकी, वो आपकी है 1 करोड़ रुपए या 2 times of the amount which has to be paid, whichever is lower, and officer in default पे 1/10 of the amount to be paid, और 2 लाख रुपए whichever is lower। बेटर है दे दिया जाए। सरकार को पैसे दे दो, वरना तो सर इससे बेटर तो है पीएम केयर फंड, पीएम रिलीफ फंड में दे दें। हाँ, और 80G का बेनिफिट ले लें। सर ठीक है, तो 80G में नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो अभी नए जो 21 से अमेंडमेंट आई थी कि 80G का बेनिफिट जो है सीएसआर एक्टिविटीज में जो क्वालिफाई करेगा उसका नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा है सर? वो अभी से क्या है? वो तो जब से सीएसआर आया तब से लिखा हुआ है।
नहीं तब से नहीं, 80G के अंदर तब नहीं था, क्लेम हो रहा था। तभी से था सर। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। एटीजी में कहाँ अमेंडमेंट आया है? ये तभी से आया हुआ सर। एटीजी में कहाँ अमेंडमेंट आया? नहीं अभी इस साल में करंट ईयर से शुरू होगा, लाइक जो अब जो रिटर्न जाएंगी। कहाँ लिखा हुआ सर? मुझे कुछ ध्यान है, लास्ट ईयर भी है, मतलब नहीं सर, ये 2014 में ही आ गया था। दैट इज देयर अर्लियर अंडर द एमसीए। मैं आपको बताता हूँ, एटीजी के अंदर 2 फंड है जिसमें अवेलेबल नहीं है। वन इज क्लीन गंगा एंड वन इज स्वच्छ भारत, जिसमें एटीजी का बेनिफिट नहीं है सर। पीएम केयर्स फंड के अंदर तो अभी कोविड के अंदर उन्होंने बोला आप इसमें डिपॉजिट कराओ, सीएसआर जमा कराओ और आप एटीजी का बेनिफिट लो। एटीजी में रजिस्ट्रेशन दिया उनको। सर वो जो अमेंडमेंट आई है वो सीएसआर जो एक्टिविटी तो ट्रस्ट वगैरह को दे के कोई एक्टिविटी करते हो जो वहां पर क्वालिफाई करती है सीएसआर के लिए, अदर देन मतलब ऑल विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर एटीजी नाउ। सर अलाउड है सर। वाला कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नहीं है, मुझे शेयर करना प्रोविजन। ठीक है सर। और अभी हमारे एक तो ये है कि एक क्वेश्चन और आया एज पर सेक्शन 115 BAA। सर यहाँ पर भी मेरी बात समझें कि 115 BAA 115 BAB इट टॉक्स अबाउट पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 है। कुछ किताबों में भी सही नहीं लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर सही लिखा हुआ, उसको पूरा पढ़े। चैप्टर 6 से पार्ट सी जो कि 80H से चालू होता है, जी उसमें नहीं है। जी का बेनिफिट मिलेगा, जी का बेनिफिट मिलेगा। एक बार दोबारा चेक कर लो। राइट सर। एओ सर किसने कहा एओ अलाउ नहीं कर रहा? 100% कर रहा है। एओ हैज नो राइट। एटीजी 100% अलाउ कर रहा है। क्लेम कर रहे हैं सारे। एक भी बता दीजिए अगर किसी ने नहीं किया, 1 मिनट में आपको अपील में मिल जाएगा। देखिए क्या है, वो सेक्शन 37 में है that CSR expenditure, any amount spent on CSR will not be allowed in expenditure। वो आज भी है। एक्सपेंडिचर थोड़ी क्लेम कर रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर तो मैं डिसअलाउ कर रहा हूं। एटीजी में अलाउड है। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल लास्ट ईयर आई वाज चेयरमैन ऑफ द सीएसआर कमिटी। पहली बार कमिटी बनी है सीएसआर की, आई वाज द चेयरमैन। सो वी हैव इशूड पब्लिकेशन, वी हैव गिवन 80 क्यूज जहां पे हमने आंसर दिया है। और तो और आप FAQs देख लो एमसीए के, उसमें भी लिखा हुआ है जहां एटीजी मिलता है वहां मिलेगा। तो देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं। सर ये सीएसआर का प्रोविजन करना कंपलसरी है बुक्स के? हाँ, अब 21 में मैंडेटरी हो गया ना सर। नहीं 20 तक तो नहीं था ना जितना। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये चेंज आया है। 20 तक तो, नहीं था, अब 21 में से आउटवर्ड करना पड़ेगा। जो अगर ये 15-16 की किसी की कोई तब बनता था 17 के अंदर, उसने पार्टली ड्यूरिंग 2-3 इयर्स 2021 तक खर्च कर दिया और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देता रहा कि इतने पैसे और खर्च हो गए, इतने पैसे खर्च हो गए, तो उसका क्या करना पड़ेगा? अभी कुछ करना पड़ेगा? आप सर ये समझें, मान लीजिए मैं 16-17 की बात करता हूँ। हाँ जी। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये कहा कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा मेरे को और करना है, मैं करूंगा। अगर उसने ये कहा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कि मैं करूंगा, तो क्या उस वक्त बैलेंस शीट के अंदर उसका प्रोविजन नहीं होना चाहिए था? ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर की गलती नहीं है। अगर उसने कहा मैं करूंगा, इट वॉज रिलेटेड टू दैट ईयर। बट उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में यही लिखा कि ये इतना क्वालिफाई, इतना ड्यू बनता है और इतना स्पेंड किया। और नॉट स्पेंडिंग का रीजन कि उस टाइम कोई एक्टिविटी मिली नहीं, इसलिए आगे हम करेंगे कि नहीं करेंगे। कईयों ने देखो ये लिखा कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, वी वांट टू से वी वोंट बी स्पेंडिंग। अच्छा, वहां कोई इशू ही नहीं है, वहां कोई स्पेंड ही नहीं करना। ओके, कई लोगों ने बुक्स में प्रोविजन किया, जिन्होंने किया उनको तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ठीक हो गया। और केस टू केस वेरी कर। सर एक बार ये एप्लीकेबल हो गया, जैसे 16-17 में, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स आल्सो, ऑल्दो द प्रॉफिट्स कम डाउन। ऑफ एक बार ही 5 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट गए, उसके बाद लॉस हो गए कंपनी में, पहले भी लॉस थे, आगे भी लॉस है, तो वो 3 साल तक हर बार वो 5-5 करोड़ पे वर्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा 2%।
बिल्कुल करना पड़ेगा, बट पवार साहब ऐसे कैसे कि पहले भी लॉस आगे भी लॉस, एक साल में प्रॉफिट कैसे हो गया? वो इसलिए कारण है कि वो रियल एस्टेट कंपनी में सेल ही उसी साल में हुई, उसके बाद सेल बेसिकली नहीं हुई। जो है इन्वेंट्री एज इट इज है, बाकी इनकम आती है, खर्चों के बराबर हो गए। मतलब तो पावा साहब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा रहेगा कि आपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट को 2% निकालने, मान लीजिए आपने प्रॉफिट टोटल किया, तीनों का टोटल किया और टोटल लॉस आया, तो स्पेंड नहीं करना बनेगा सर वाले, लेकिन आपको सीएसआर कमेटी बना के रखनी पड़ेगी 3 साल तक। वो ठीक है सर, जैसे एक साल में करेंगे तो वो प्रॉफिट आ जाता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, प्रॉफिट भी आया, नेक्स्ट ईयर में एवरेज निकालेंगे फिर प्रॉफिट ही रहेगा, थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट ही रहेगा, 5 करोड़ तो 5 करना पड़ेगा, लॉस तो लाख 2 लाख रुपए इधर उधर का लॉस है, करना पड़ेगा सर। तो वो हर बार 2% वो तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर से भी बहुत ज्यादा फिगर बन जाएगी। नहीं सर, है तो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ना। लॉस अगर लाख रुपए हुआ ड्यूरिंग द ईयर, नेक्स्ट एवरी ईयर लाख रुपए होकर मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लो आप प्रॉफिट का 6% हो गया, 3 साल में तो प्रॉफिट का 6% से ऊपर तो नहीं जाएगा ना। हाँ जी, उतना हो सकता है, एग्रीड, फुल्ली एग्रीड व्हाट यू आर सेइंग। वो लॉस कर रही है कंपनी, बट वो उसको सीएसआर में दान देना पड़ेगा 3 साल तक। यस सर, यस यस, ठीक हो गया ना। हाँ साहब, नहीं है मेरे को, अगर 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 1 लाख लॉस है, 10 लाख लॉस है, तो एवरेज प्रॉफिट 3 से डिवाइड हो गए कम। आप बार बार सर ऑन ऑफ कर रहे हो कोहली साहब, अब आप म्यूट हो। Question was not clear, Power Saab's query. Suppose I have a profit of 6 crores in year 1, there were 10 lakhs loss in the subsequent years. So once you take a gap of 3 years, the profit will be less than 5 crores. Average profits. So year 1 जिसके अंदर हुआ, उसके बाद में subsequent year you don't have any CSR, आपका फॉर्म बाय डिफॉल्ट पकड़ लेगा उसे। फॉर्म तो कोई आएगा ही नहीं ना। So once you fill up your annual return, उससे पिछला सकल प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, मैं अभी मीटिंग में हूं, तो लास्ट ईयर में तो लॉस ही था प्रीवियस ईयर में। हां बेस ना डायरेक्टर बोर्ड का। हां हां, चलिए सर, अभी गौरव बंसल जी का व्यू था कि अभी ऑडिट ट्रेल है, बट उसके अंदर फाइंडिंग नहीं है कि वी कैन चेंज एंट्री, ऑल दोस थिंग्स आ जाएगा उसमें, डोंट वरी। एक क्वेश्चन है आत्मानंद सरिया जी का, हाउ अबाउट स्मॉल कंपनी हैविंग पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स हु कम वीकली। ठीक है सर, मैंने एंट्री की महीने के एंड में, और मैंने महीने की पूरी कैश बुक की एंट्री कर दी, एग्रीड। मैं कहा जी मैं कैश महीने के महीने मिलाता हूँ, फिर वो अगले महीने एंट्री कर रहा है, फिर वो तीसरे महीने कर रहा है, तीसरे महीने में फर्स्ट महीने की एंट्री कर रहा है, तो मेरी कैश बुक कहां टैली होगी? ओनली इश्यू इज दिस, मैं अगर ये कहता हूं कि मेरा सिस्टम है कि मेरा पार्ट टाइम अकाउंटेंट है और वो मेरा क्वार्टरली आके अपने अकाउंट्स करता है, ठीक है, अलाउड है, मैंने मैनुअल कैश बुक मेंटेन कर रखी है, बाद में कंप्यूटर में फिट करता है। बट जब वो क्वार्टर खत्म हो गया, मेरा कैश बुक टैली हो गया, मेरा फिजिकल कैश टैली हो गया, फिर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर की कैश की एंट्री हो रही है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? Then how did my cash tally? That would be an issue in the audit trail, nothing else. सर एक चीज और है, ओपीसी में कोई शेयर होल्डर्स वाली कोई मीटिंग नहीं होगी, इसका मतलब? हाँ जी, ओपीसी कंपनी में there will be no shareholders meeting? Of course not. And directors meeting if only one person is there? No meetings. The only decisions are to be conveyed via MGT for Noting, सिर्फ नोटिंग करनी है आपको, वहां पे एक प्रॉपर इसका प्रोविजन है कंपनीज एक्ट है। रमेश तोशनवाल जी का कहना है contribution to PM care is eligible for 80G but companies opting 80 BBA no deduction under chapter 6A। अरे सर पूरा पढ़े, मैं बार रिपीट किया हूं, मैंने अभी भी बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज चैप्टर 6A पार्ट सी। सर चैप्टर 6A के 3 पार्ट हैं, A B C, आप देखेंगे वहां पे पार्ट सी लिखा हुआ है, दोबारा चेक कर लें, 115 BAA, राइट? सो दैट वे कैन वी डू एंट्रीज वाया इम्प्रेस्ड अकाउंट? यस, बट इम्प्रेस्ड अकाउंट को भी तो आप रेगुलरली करोगे। नहीं सर, बैक डेटिंग में ना एक्सेप्ट करता हूं, ना मैं कहूंगा कि आप क्लाइंट को सजेस्ट करो। प्लीज डोंट फाइंड आउट वेज टू टेल टू द क्लाइंट्स टू अवॉइड द लॉ। जितना हम लोग बताएंगे उतना ही इट वुड बी नॉट गुड फॉर द assessee, not good for the professional।
अल्टीमेटली सब कुछ हमारे ऊपर ही आ जाता है। सो प्लीज डोंट टेल बोलो जी करंट डेट में करो, हमको नहीं पता। द मोमेंट हम कहेंगे तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है और हमारे ऊपर सारा दोष आ जाता है। व्हाई शुड वी डू? इक्कीस के अंदर मेरा प्रॉफिट 8 करोड़ था तो मेरे को एप्लीकेबल हो गया 21 का, तो मेरे को मार्च 22 में 8 9 10 करोड़ डिवाइड बाय 3, मेरे को पिछले साल का प्रॉफिट देखना है 5 करोड़ का। 5 करोड़ क्रॉस कर गया, राइट, CSR एप्लीकेबल। 9 पिछले 3 साल के प्रॉफिट का मेरे को 2% जमा कराना। ये पवन कुमार जी का क्वेश्चन था कि पहले साल में 1 करोड़, दूसरे साल में 1 करोड़, तीसरे साल में 8 करोड़, तो 8 करोड़ क्रॉस करते ही मेरे को CSR एप्लीकेबल हो गया। फिर मेरे को एवरेज 2% ऑफ द लास्ट 3 इयर्स का पेमेंट करना है। सर यहाँ 8 करोड़ की जगह 4 करोड़ होता तो नहीं होता। फिर तो पहली applicable कंडीशन है नहीं 5 करोड़ क्रॉस करेगा। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन भी था कि टाइम लिमिट क्या है कि मार्च 21 का ये CSR कब खर्च करना है हमने? सर मार्च 21 का मैं मार्च 21 का CSR मार्च 22 तक, मार्च नेक्स्ट ईयर तक पूरे साल में करना। नहीं किया तो साल भर के बाद आपको PM केयर फंड में देना है, व्हाटएवर इज द वे, पूरा साल है आपके पास। ठीक। शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट अभी जो जगजीत जी ने बोला, दैट वाज रिगार्डिंग ऑडिट ट्रेल व्हिच वाज एप्लीकेबल ऑन 1 April 2022, but schedule 3 amendment is from 1 April 2021। इसके 3 डिवीजन हैं। डिवीजन 1 फॉर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006, डिवीजन 2 फॉर इंडियाज दैट इज listed companies and entities whose net worth is more than 500 crores, 250 crores, their holding and subsidiary, and division 3 is for NBFCs Indias। Now ये शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है 1 April 2021, यानी मार्च 21 की जो बैलेंस शीट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 31 मार्च 22 की बनाऊंगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेट अस अंडरस्टैंड इन ब्रीफ जो कि मार्च 22 की बैलेंस शीट के लिए होगा, क्या ऐसा कुछ है जो मेरे को 31 मार्च 21 के लिए ध्यान रखना है? 22 नहीं, 21 के लिए ध्यान रखना। So let us understand the schedule 3 amendments। Changes in division 1 क्या है? Basically जनरल इंस्ट्रक्शन में एक, बैलेंस शीट में एक। जनरल इंस्ट्रक्शन इन बैलेंस शीट का मतलब है नोट्स टू द बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक और नोट्स ऑफ प्रॉफिट लॉस में 4। डिवीजन 2 के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन में 1, बैलेंस शीट में 2, नोट्स के अंदर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अमेंड कर दी और नोट्स में 28। ये मोरलेस वही हैं जो कि डिवीजन 1 वाले हैं, राइट, सेम प्रॉफिट लॉस के भी सेम। एंड डिवीजन 3 के अंदर अगेन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो चेंज किया है और जनरल इंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट 23 से ऊपर चेंजेस हैं और प्रॉफिट लॉस के लिए 3 चेंजेस हैं। लेट अस गो टू दिस चेंजेस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगले साल क्या चेंज आएगा? इस साल नहीं है पहले तो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, राउंडिंग ऑफ। ये मार्च 22 के लिए आएगा। 21 में क्या है? ऑप्शनल, वॉलंटरी। फॉर दिस इज फॉर शेड्यूल डिवीजन 1। इंडेस में तो आज की डेट में भी मैंडेटरी है। इंडेस के लिए तो आज भी राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी है। मेरी जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनके लिए राउंडिंग ऑफ ऑप्शनल है। सबसे पहले बात, अगर मान लीजिए आप राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे तब भी जो हम ये पैसे लिखते हैं ना 25,24,350 रुपए 35 पैसे, ये पैसा आर नॉट अलाउड, इट हैज टू बी इन रुपीज ओनली। लेकिन अगले साल से दिस राउंडिंग ऑफ टोटल टर्नओवर की जगह टोटल इनकम हो जाएगी। बट राउंडिंग ऑफ वुड बी मैंडेटरी। तो जब मैंडेटरी होगा 22 के लिए, 21 के लिए ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, तो मैं इसी साल क्यों ना कर दूं? इसी साल से कर दूं, करना तो है ही अगले साल। जो कुछ मान लीजिए कुछ गलती से रह गई तो मैं अगले साल कर दूंगा।
क्या राउंडिंग होता है? जस्ट टू फॉर अवर नॉलेज, अगर मेरी टोटल टर्नओवर is less than 100 crore, then rounding off is to nearest 100, 1000, lakh, million, crore or decimal thereof. But agar meri turnover is more than 100 crore, then no 100, no 1000, lakh, million or crore. तो आप इसी साल से चालू कर सकते हैं, क्योंकि इस साल तो ऑप्शनल है ना, but we can do it. Next year mandatory, I cannot do it. राइट, हेडिंग ऑफ पीपी करेक्ट कर देंगे, इस साल नहीं कर सकते क्योंकि अगले साल से है। एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ साथ आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट, एंड टेंजिबल एसेट की जगह आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। सो एक नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में चेंज आएगा। अब आपकी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग एंड चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर भी आपने देने हैं। अभी तक मेरा क्या जाता है 5%, जिसकी 5% से ऊपर है। अगले साल से प्रोमोटर की भी जाएगी, चाहे वो 1% हो चाहे वो 100, तो दोनों जाएंगे। ये प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर वो होता है जो एज पर सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है प्रोमोटर, एंड विच इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज स्टेटेड टू बी प्रोमोटर इन द एनुअल रिटर्न। प्लीज सी हु इज मेंशन्ड एज अ प्रोमोटर इन द एनुअल रिटर्न। क्या पता हम कॉपी पेस्ट करते चले आ रहे हो और वो प्रोमोटर पुराना वाला चला आ रहा हो। तो आपको वही वाली बात है, जब ये 22 ईयर की बैलेंस शीट के लिए जाएगा, नोट्स के अंदर जाएगा ना, तो 21 की भी डिटेल देनी है। तो आप पिछले साल की एनुअल रिटर्न चेक कर लें, और कोई करेक्शन है तो इस साल चेक कर लें, क्योंकि अब एनुअल रिटर्न को आप चेंज नहीं कर सकते जो मार्च 20 वाली जा चुकी है, राइट। लेकिन अगर मैंने 21 जो मैं इस साल की एनुअल रिटर्न भरूंगा, उसमें जो मैं प्रोमोटर भरूंगा वही प्रोमोटर माना जाएगा ना 21 की बैलेंस शीट के लिए। मार्च 21 की बैलेंस शीट के लिए वही प्रोमोटर माना जाएगा। अगर कोई एरर है तो इसी साल ठीक कर ले, क्योंकि उसकी जो शेयर होल्डिंग के चेंजेस है वो भी देनी पड़ेंगी। तो whom I am showing as a promoter in the annual return, kindly check this year itself. मान लीजिए this year also you don't see, and in 22 you see, अरे ये तो मैं इसको प्रोमोटर दिखा रहा हूँ, इसकी तो डेथ हो गई, या फिर ये तो मैंने कंपनी खरीदी थी, ये तो ओरिजिनल वाला था, अभी तक यही प्रोमोटर चला आ रहा है। Sometimes because promoters we don't change, the shareholding may be nil, but then it is still continuing, so that has to be given. एक सेकंड, फिर एक इम्पोर्टेंट। हाँ जी पाल जी, मैं मीटिंग में था, कुछ अर्जेंट। हाँ नमस्कार। अरे कल 11 बजे एक प्रेसिडेंट सर के साथ मीटिंग है, 11 बजे। वो आज चेंज हुआ, नहीं मैं हो सकता आ जाऊँ, अगर 11 बजे 12 बजे खत्म हो गई तो आ जाऊँगा। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में बात करूँ। सॉरी, ये 8-10 बार फोन आ गया था, इंस्टीट्यूट से आया था, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू टेक, सॉरी। हेंस प्रोमोटर्स को इसी साल चेक करें, अगले साल चेक करने से कुछ नहीं होगा, राइट। दिस चेंज वुड बी देयर नेक्स्ट ईयर। हम क्या करते थे अभी तक, क्योंकि ये 2012 से सेम चल रहा है, 2012 शेड्यूल 6 रिवाइज जब हुआ था। Current maturities of long-term borrowings that has been reclassified as short-term borrowings instead of current liabilities. So पहले मैं उसको current liability दिखाता था, अब short-term borrowings हो जाएंगे। So ये change 22 में आएगा, इस साल नहीं करना। And similar change is reclassification of security deposit, जो कि मेरे long-term loans and advances की जगह, मतलब कि loans and advances की जगह other non-current assets में आ जाएगा, other current assets, other non-current assets depending upon case to case. Now this is a very, very important change. And you know, when I have been giving lectures to various independent directors or bankers, so I have been telling them, आप हमेशा ना सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल पे वर्किंग करते हैं, ट्रेड पेबल पे तो देखते नहीं। कहते हैं कि हम तो अनपेड स्टॉक को देखते ही नहीं। मैं कहूँ आपकी बात ठीक है, पर देखो तो सही ट्रेड पेबल्स की एजिंग क्या होती है, पूछो तो सही। Now we have been giving dues to MSME and others. Now I have to give also
MSME and non-MSME either as well as disputed or non-disputed. Plus aging which is less than 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 years. ट्रेड पेबल्स की 22 की देंगे, नोट्स के अंदर 21 की नहीं देंगे। आपने 21 में ख्याल नहीं रखा, ठीक है, 22 में आके यस शेड्यूल 3 का चेंज 22 का 21 का तो है ही नहीं। आपने देखा अरे यार ये तो 3 साल से ऊपर का अमाउंट जो आ रहा है वो तो 3 करोड़ रुपए आ रहा है। अरे नहीं इसको तो राइट ऑफ करो, इसकी तो पेमेंट करो। तो आपने चलो फरवरी मार्च में चेक किया, क्योंकि बहुत सेमिनार होंगे, तो आपने फरवरी मार्च के अंदर उसको पेमेंट कर दिया, यहाँ हो गया नील। 21 की बैलेंस शीट फिगर करो 3 करोड़। भैया ये क्या चक्कर है, किसको किया, क्या किया, सारा वेरिफिकेशन कराओ। ऑडिटर की भी ड्यूटी है, एम से भी पूछेगा, इनकम टैक्स वाला भी पूछेगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो इनकम टैक्स में भी जाएगी। सो रोल ऑफ द ऑडिटर वुड बी टू सी ऑल विच आर मोर देन 1 ईयर, और जो 2 ईयर से ऊपर है उनकी तो स्पेसिफिक मैं कहूंगा कि वी शुड डू द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। भी कंफर्मेशन तो चाहिए। अगर मान लीजिए पेबल नहीं है, आप कह रहे हैं डिस्प्यूटेड भी नहीं है, डिस्प्यूटेड है तो कहां डिस्प्यूट है, कंटीजेंट में क्या दिखा रखा है, और डिस्प्यूटेड नहीं है तो पेबल कैसे है, पेबल अभी तक क्यों नहीं किया। अगर मान लीजिए पेबल नहीं है तो राइट ऑफ क्यों नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस is going to change the total transparency. And again, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को एक सेमिनार में पूछा गया, ये तो आपके आप ये देखो जी, कारों के अंदर मेरे को कारों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, बहुत सारे कारों में पूछे जा रहे हैं। मेरे को तो 20 करोड़ से नीचे में कारों एप्लीकेबल ही नहीं है, 20 करोड़ से नीचे में कारों एप्लीकेबल नहीं है। यस कहते मैं तो ऑडिटर तो रिपोर्टिंग करने से ही रह गया ना, ऑडिटर को तो कुछ देखना ही नहीं। 185, 186, 73 वेरी गुड। उन्होंने शेड्यूल 3 में ही चेंज कर दिया, सब कुछ शेड्यूल 3 में ले आए। अब शेड्यूल 3 में जो आएगा ऑडिटर को उसके ऊपर तो अपनी व्यू देनी है कि शेड्यूल 3 कंप्लायंस। अगर मान लीजिए इसमें ये फिगर्स आ रही हैं तो क्या ऑडिटर चेक नहीं करेगा कि दीज आर राइटली गिवन और नॉट, राइटली गिवन और नॉट। Not only trade payables but trade receivables similarly disputed, doubtful। जो disputed है वो doubtful नहीं होगा। I don't know। And here again less than 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year। आप कह रहे हैं पैसे आने, आप कह रहे हैं ना disputed है ना doubtful है, और 3 साल से ऊपर हर साल बढ़ता चला आ रहा है। 22 का भी 21 का भी एक्चुअली रिसीवेबल है कि नहीं। हाउ इट इज ट्रू एंड फेयर, विल द ऑडिटर नॉट बी आस्क्ड ओके व्हाट हैव यू डन। जब मैनेजमेंट से आप नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, पूछना पड़ेगा। 21 में नहीं पूछोगे आप। अगर मान लीजिए 21 के अंदर ये नील हो जाता है, यहाँ पे नील हो जाता है, तो 22 में भी नील होगा ना, या लेसर अमाउंट होगा ना, डिस्प्यूटेड होगा तो होगा ना। तो मैं 22 में देखने की बजाय 21 में ना पूछूं ये सब। एनी क्वेश्चंस और व्यूज हियर? Gaurav Bansal question है, sir, many companies adding this changes and disclosures in 31st March 21 financials also with note that is applicable for 22. No, additional देना चाहो दे दो, but not required. Credit for expenses not paid within 180 days need to be reversed in GST, and if we show more than 6 months, then we need to reverse GST on that. Yes, company has to reverse. If they don't, then there is an issue. Now, certain questions are there in the Q&A also. Amit ji ka question hai, if form 10 IC missed to file before the income tax return for company, CPC process the return with previous method, what is the remedy now? आज last date है,
रिवाइज रिटर्न फाइल करो, फॉर्म 10 IC फाइल करो। लेकिन एक बार बताऊं मैं, 10 IC फाइल करना जरूरी, देन यू हैव टू गो एंड 10 IC is for 115 BAA, ID is for I suppose BAB। तो आपका अगर IC फाइल नहीं किया तो आपको मिलेगा नहीं, आपको ऑप्ट करना चाहिए था। लेकिन स्टिल यू कैन गो एंड फाइल एन अपील दैट इट वाज अ क्लरिकल एरर, बट आपने अभी तक फाइल नहीं किया तो फिर मुश्किल होगा अमित जी। सो आप आज भी करके रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न, एंड देन ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग का इश्यू रहेगा, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर एन अपील। One more question, should we have to make provision in 2021 balance sheet or 22 balance sheet? अगर आपको अमाउंट स्पेंड करना इन द 22 बैलेंस शीट, बिकॉज 21 का तो प्रॉफिट के बेस के ऊपर आपको CSR कमेटी नेक्स्ट ईयर में बनानी है पवन जी, नेक्स्ट ईयर में बनेगी तो खर्चा भी नेक्स्ट ईयर का ही करना है। एनी अमाउंट पेड रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ अननोन पर्सन, देन अमाउंट कवर्ड अंडर CSR एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है। CSR अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, आप जिसको समझें कि इट हैज टू बी एज पर द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की पॉलिसी क्या, और पॉलिसी को अपने वेबसाइट पे भी डालें। अगर आपकी पॉलिसी में है ही नहीं ऐसा काम तो आप नहीं कर सकते, और अगर पॉलिसी में है तो कर सकते, देन इट वुड बी CSR। बट अगेन देन आपको चेक करना शेड्यूल 7 के कौन से क्लॉज में। सर व्हाइल डीलिंग विद 115 BAA में लोगों के बहुत क्वेश्चन है, तो लेट मी रीचेक। अगर इतने कुछ लोग कह रहे हैं 115 BAA में, तो 115 BAA देख लेते, कोई जो चेंज आया वो इसमें कोई चेंज आया क्या PAA में, जहां पे पार्ट C को चेंज किया गया? मेरे नॉलेज में नहीं किया, बट फिर भी इतने मेंबर्स कह रहे हैं, तो लेट मी रीचेक इट। सर 25 था, जो सब्स्टिट्यूट किया 1 अप्रैल 2021 से, or any under any provision of chapter 6A other than provision of chapter 80JJAA or 80M substituted for other than provision (115BAA) restricts, I'm sorry, you're right. Thanks for correcting me. एक्ट में तो ऐसे ही है जैसे आप बोल रहे हैं। 80G का बेनिफिट जो 115 BAA में जा रहा है और 115 BAB में जा रहा है, उसको चैप्टर 6 से पूरा का पूरा ही डिसअलाउड है। जो मेरा 115 BAC है उसके अंदर भी 80G अलाउड नहीं है। Yes. Assessment year 21-22 तक, assessment year 2021 तक it was different. It was chapter 6A under heading C. But now it is different. Now it is under chapter 6A other than 80J, JJAA and 80M. I suppose there is some error into this.
अगर ऐसा होगा तो ये कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी। So let me re-study that again. Thanks for bringing that to my notice. Round it off. For example, turnover is 5,75,435. We're rounding off to 100. Then it would be, yes, 5754.35. It would be 5734.35. Sachin Singhal ji, you are right. It will not be 5754 but 5754.35 because it is odd decimal thereof. So you can go up to decimal thereof. Whether aging will be done on the basis of credit period allowed to the each debtor, it is from the amount due, from the amount of due date. So what is your due date depends upon that. So from there it is going to be there. Manoj Shah ji ka question hai, in financial for financial year 21-22, aging is to be given for debtors creditors. But what about previous year figure 2021 in that financial year? Whether same is to be reconciled to the new. Yes, it would be because जब आप 22 की फिगर्स देंगे मनोज जी, तो मैंने स्पेसिफिकली बताया ना 21 की भी साथ देनी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप इसी साल करके रखिए। Yes, Naresh ji, I fully accept what you are saying. Effective from 1st April 21 means assessment year 21-22. But still I'll recheck that again. क्योंकि इसमें आ रहा है, this should not be intent because then the political contribution also अगर ये लोग देंगे तो उनको benefit नहीं मिलेगा. But what you are saying is currently there in the law. I fully agree and appreciate it. So yes, trade receivables, trade payable, please check कीजिएगा. And then of course my capital WIP, intangible asset under development, चला आ रहा है 10 साल से चला आ रहा है और काम भी नहीं हो रहा, हम भी चलाते जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा पिछले साल चला आ रहा था 4 करोड़ रुपए, अभी भी 4 करोड़ चला आ रहा है, कोई चेंज ही नहीं है, छोड़ दो, चेंज आएगा तो देखेंगे, पर आपको देना पड़ेगा। अगर सस्पेंडेड है तो कब तक खत्म होगा, सो स्टार्ट वर्किंग ओवर इट इन 21 इटसेल्फ। ये तो एक पीपी इंटेंजिबल एसेट रिकंसिलिएशन में एक लाइन आइटम ऐड की है कि इफ चेंजेस ड्यू टू रिवैल्यूएशन व्हिच इज मोर देन 10% तो एक लाइन आइटम ऐड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर होगी तो प्रीवियस ईयर की फिगर उसमें नहीं आएगी क्योंकि वो उसी की डिटेल आ रही है, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट में वो नहीं था। नाउ दिस अगेन टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, अगर आप देखेंगे तो अभी भी कारों में है। Now it will include that whether it is held in the name of any promoter, director or relative of promoter, director or employee of the promoter, director. Now please see, मेरे को देना है तो उसके साथ में उसका नाम वाम सब देना पड़ेगा। एंड कारों के अंदर भी रिक्वायरमेंट है 1C के अंदर, सिमिलरली कारों 2020 में कि अगर डायरेक्टर्स, क्योंकि पहले डायरेक्टर्स और प्रमोटर और डायरेक्टर के रिलेटिव की डिटेल नहीं थी, है तो अब देनी पड़ेंगी, तो कारों में भी है पर नोट्स में ऑलरेडी आ जाएगा। नाउ अगर जिसको कारो एप्लीकेबल नहीं है नोट्स में आ जाएगा तो ऑडिटर की ड्यूटी होगी चेक करना, ऑडिटर की ड्यूटी होगी चेक करना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड किसके नाम से है। सो हेंस इट हैज टू बी गिवन एज पर कंपनीज एक्ट, इट हैज टू बी इन द नेम ऑफ द directors. In case of revaluation of property, plant and equipment, valuation whether has been done by a registered valuer or not. You know, we had been जब से मैं आया था काउंसिल के अंदर तो the last year valuation standard goals also we had been representing कि अगर इन कंपनी लॉ में कोई भी वैल्यूएशन होना है, क्या होता था इंडियंस में वैल्यूएशन होती थी तो वो कोई भी कर देता था। So we requested them that this valuation should be done only by a registered valuer. Now they say if the revaluation of the property, plant and equipment has been done, has the valuation been done by the registered valuer? Again, the same question was asked by the Caro 1D. So notes में भी आ गए। Loans or advances granted in the nature of loan, granted जो दे रखे हैं to promoters, directors, KMP and related party, वो हम कई लोग कहते हैं तुम ऑलरेडी दे रहे हैं 180 AS 18 में दे रहे हैं, 186(4) में दे रहे हैं,
बट यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, वेदर दे आर रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म और पीरियड। अब आप चेक करें किस किस कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टीज को, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, केएमपीज को लोन दे रखे हैं विदाउट एनी टर्म्स, एंड उसका परसेंटेज विद द टोटल एडवांसेस क्या क्या 100% इन्हीं को दे रखे हैं। दे रखे हैं तो आपको डिटेल देनी। So it would be total transparency. Then whether these are prejudicial to the interest of the company, वो कारों में रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है, और ऑडिटर को हेल्प करने के लिए ये पॉइंट्स नोट्स में डाल दिया कि ऑडिटर ने क्या करना था। ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछना था, मैनेजमेंट मेरे को एमआरएल देती, तो वो एमआरएल तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन उसके साथ साथ अब ये नोट्स के अंदर भी आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Further, where the company has not used the borrowing from bank or financial institution for the specific purpose for which it has taken at the balance sheet date, तो मैंने टर्म लोन लिया और टर्म लोन लेने के बाद कहीं और यूज कर दिया, तो डिटेल्स कहाँ यूज किया, और लेकिन वो एज अ बैलेंस शीट मांग रही है। लेकिन मैं कारों की बात करता हूँ, अगेन कारों में भी ऑडिटर से रिपोर्ट मांगी गई है क्लॉज 9C में, बट दैट इज ओनली फॉर द टर्म लोन, एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट इज अ स्पेसिफिक पर्पस normally it would be a term loan only. कोई सीसी लिमिट स्पेसिफिक पर्पस से शायद नहीं देता, बट अगर दे रखी है then it would be also covered in the notes. बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टी पे भी कमेंट करना है, कारों में भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन this detail is to be given only when the proceedings have been initiated or pending against the company, otherwise not. तो मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि बेनामी प्रॉपर्टी का कोई नोटिस तो नहीं आया, कोई प्रोसीडिंग तो इनिशिएट नहीं हुई। तो कारों में तो रिपोर्ट करनी है, लेकिन उससे पहले नोट्स में करनी है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो नोट्स में पॉइंट्स डाले हैं, शेड्यूल 3 चेंज किया है, क्योंकि कारो 2020 तो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा, इस साल नहीं होगा, तो शेड्यूल 3 में ऑडिटर की हेल्प करने के लिए डाला गया। दोनों तरीके हैं, कारो एप्लीकेबल नहीं होगा 20 करोड़ से नीचे में, लेकिन ये डिटेल चाहिए और ऑडिटर से वेरीफाई करानी है, तो नोट्स में डाल दिया। So both ways it is. This is very important. Company has borrowing from the banks or financial institutions against current assets. मेरी स्टॉक की डिटेल, मेरे डेटर्स की डिटेल, whether the quarterly returns which are filed are in agreement with the books of account or not. If yes, summary of the reconciliation and the reason for the material discrepancy. Now 22 की डिटेल दूंगा तो 21 की भी तो दूंगा, इस साल भी तो चेक कर लो। रिकंसिलेशन मांगेंगे ना, दोनों साल के देंगे। एंड अगर मैं कारों की बात करूं ना, तो वहां पर कहते हैं कि अगर मेरी बोरिंग 5 करोड़ से ऊपर है तब देनी है। यहाँ तो नोट्स के अंदर तो 50 लाख को भी इंक्लूड कर लिया। ऑडिटर को तो रिपोर्ट करनी है 5 करोड़ से ऊपर, लेकिन उसके नीचे के अंदर बैलेंस शीट में आ गई तो ऑडिटर को तो सारी एप्लीकेबल हो गई। एंड दिस 5 करोड़, आई अंडरस्टैंड लास्ट ईयर वी हैड अ ह्यूज डिस्कशन दैट हाउ डिड द AASP informed, had a huge discussions with the MCA कि सर ऑडिटर कहाँ करेगा, कहाँ चेक करेगा, ह्यूज हो जाएगी। सो नाउ इट इज इन द शेड्यूल 3, तो सारी की सारी आ गई, सारी की सारी आ गई। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? या स्टेटमेंट सबमिटेड विद द बैंक। नरेश जी, जो स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली बैंक को जाती है, डेटर्स की स्टेटमेंट जाती है वो। एंड यहाँ पर जब हमारा काम होगा, इस साल भी मांगिएगा, यहाँ पर मांगेंगे तो प्लीज रिसिप्टेड कॉपी। उन्होंने क्या दिया हमको क्या पता, उनको कुछ और दियो, हमारे को कुछ और दियो, सत्यम टाइप। सो प्लीज सी दैट आई हैव टू टेक अ रिसिप्टेड कॉपी फ्रॉम द बैंक। सो चेंज अगर मैं देखूं इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 21, प्रैक्टिकली इस हिसाब से आ जाता है कि मेरे को इस साल के भी डिटेल्स अगले साल की बैलेंस शीट में देनी पड़ेगी। Ratios along with numerator and denominator explain the variation of it is more than 25%. These 11 ratios, which includes, you know, inventory turnover, trade receivable turnover, trade payable turnover, 100 करोड़ की मेरी टर्नओवर है,
150 करोड़ 150 करोड़ के मेरे डेटर्स हैं, सामने आ जाएगा ना। परचेजेस मेरी 80 करोड़ की है, पेबल मेरे 120 करोड़ के है, क्वेश्चन आ जाएगा ना सामने। सो मोर एंड मोर transparency is there. And now what is asked in clause 19 by the auditors? So we used to say, हम जब कारो कर रहे थे तो हमसे ऐसे बात किए हमारे चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ने, well how will the auditor comment that the company would be able based upon the ratios, कारो में लिखा है based upon the ratios the auditor and the other information received from the company, whether the company would be able to meet its liabilities within the next 12 months. तो इन रेशियोज के बेस पे कारो की रिपोर्ट में हमने रिपोर्ट करना है whether the company would be able to meet its liabilities within next 12 months. So working on the ratios. So ratios हम कहते थे कौन सी वाली, now they have given in the notes. So along with the numerator, denominator कैसे calculate हुआ, all those things. Details where the company is declared willful defaulter by the bank. Again, कारो की requirement 9B में भी है. तो हेल्प की ऑडिटर की. Details of utilization of borrowed funds and share premium. कारो 9E and 9F क्या है कि वो ये पूछ रहे हैं कि आपने जो बोरोइंग दी आपने, कंपनी ने आगे एडवांस किया to other persons, including foreign entities. These all are known as intermediaries, because ultimately with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall directly or indirectly invest in other persons or entities identified in any method whatsoever. Invest करेंगे या lend करेंगे या ब्याह पे गारंटी देंगे कि मैंने लोन ही इसी एडवांस ही इसी बेस पे दिया, इसीलिए दिया ताकि वो आगे फर्दर लोन दे सके या इन्वेस्ट कर सके. अभी बहुत होता है कि मैं लोन लेके आगे इन्वेस्ट कर दूं, लोन लेके आगे लोन दे दूं. So all this is to be reported. ऑडिटर को करना था, मैनेजमेंट से ही मांग लिया क्योंकि हम भी उनसे मांगते, नॉट ओनली फॉर लोन्स गिवन बट आल्सो बोरोड, दोनों में देना. नोट्स में आएगा, मेरी रिपोर्टिंग यहाँ पे इजी हो जाएगी, लेकिन मेरे को चेक तो करना पड़ेगा, बेसिक डिटेल उनको देनी है नोट्स में. So what is going to come into the notes and we have to verify, kindly see while finalizing your audit fees for this 22 also. ध्यान में रखिएगा ये सब चेंजेस आएंगे, छोटी से छोटी कंपनी में there is no exception given, सबके अंदर ये आएंगे. One of the most important relationship with the stock of companies, investment, debtors, creditors, shareholders, others. आपको याद होगा मैंने ये पूसा रोड सीपी के अंदर ही सेमिनार किया था at around 2 to 3 years back, especially on this shell companies, strike of companies, जहां पे ये बात हुई थी कि भाई हम कैसे चेक करें. तो मैंने तब भी कहा था कि करना पड़ेगा and you cannot keep that in your books. कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई और मेरा अभी तक डेटर चला रहा है, मैंने उससे पैसे लेने हैं, इज इट ट्रू एंड फेयर? कंपनी खत्म हो गई और मैंने प्रमोटर से बात भी नहीं की और प्रमोटर उसको रिवाइव भी नहीं करा और मैं कह रहा हूँ इट इज पेबल, हाउ इट इज ट्रू एंड फेयर? इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा रखी है 5 करोड़ रुपए की दूसरी कंपनी में विच इज स्ट्रक ऑफ, वी आर सेइंग इट इज वैल्यूड एट द करंट वैल्यू, हाउ इज देयर? लोन दे रखा है, लोन ले रखा है. And at that time I remember we were talking about shareholders. अच्छा डिस्कशन चला था कि शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. राजीव जी भी थे, हमारे सुनील जी भी थे, सभी थे. At that time ये बात चली थी, तो ये हुआ था शेयर होल्डर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ऑडिटर्स की. मैं ये कहा था कि भैया शेयर होल्डर्स की डाउटफुल है, आई अंडरस्टैंड कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नाउ it will be brought into the notes along with the amounts 22 में और 21 में. सोचिए अगर 21 में ये सब चल रहा होगा, जब 22 में नील कर देंगे तो कैसे किया नील? राइट ऑफ किया, पेमेंट किया, क्या किया? 21 में ही नहीं आएगा तो यहां पर भी नहीं आएगा, तो आएगा ही नहीं ना नील. 22 में ना जगे 21 में जगना पड़ेगा, इसी साल चेक कर लें. अब एक
at one place when we were discussing करते हैं कैसे चेक करेंगे, कंपनी कैसे चेक करेंगी, मान लीजिए लिस्टेड एंटिटी है, कहते कैसे शेयर चेक करेगी वो उसके शेयर होल्डर्स को. Why not? This is a huge professional opportunity for the chartered accountants ना. देखो नया तो कोई आने से रहा, नहीं तो कोई स्ट्रक ऑफ कंपनी शेयर ले नहीं सकती. पुराने को चेक करना है, फीस लो, चेक करके दो. चेक कहां से करना है ये सबको पता है, एमसीए की साइट से. टेक एन असाइनमेंट, do it. So professional opportunity, yes. But if it not done in 21, please understand what will happen in 22. Very very important. मैं कहूँगा ये proprietorship partnership में भी चेक कर लीजिएगा. These are applicable for all companies. अमन जी section 8 company also. सेल परचेज नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल है तभी आएंगे, जब है ही नहीं तो नहीं आएंगे. जहां होंगे वही होंगे, जहां नहीं है वहां नहीं आएंगे. और रेशियोज भी वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे. संजय जैन जी, इन केस ऑफ नो credit year sales with old debtors, what will be the ratio? It is not about no current year sales with old debtors. Hardly matters मेरे 31 मार्च को क्या debtors है और कितनी सेल है. That is the ratio, not with current. जितने मेरे पेंडिंग है 31 मार्च को उसके हिसाब से देखना है मेरे को. नरेश गुप्ता जी का way to disclose trade receivables from company under insolvency process. Why additional details which should be declared in notes? सर देखो, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है तो वो तो मेरे को लगता है कि इट शुड बी रिटर्न ऑफ, पैसा ही नहीं आना. और मैं उसको अगर अभी भी गुड दिखा रहा हूं तो विच इज रॉन्ग. अगर गुड दिखा रहा हूं, पहले ही डाउटफुल करके उसका प्रोविजन हो जाना चाहिए था. एंड इफ यू आर श्योर दैट इट इज नॉट रिसीवेबल, इट शुड हैव बीन रिटन ऑफ. It should have been written off. Balance sheet has to be true and fair. So I have to be, अगर ये provision नहीं आता तब भी मेरे को देखना था ये. If the company is under insolvency process, I know that how I can say that my amount is due, that is purely receivable. Right? कोहली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ब्रेकअप था कनेक्शन, सॉरी. अच्छा नहीं कोई नहीं. But do you are you in agreement? वो struck off companies वाला issue would be very very tough. So people have to be adequately cautious. Go to the MCL side, look at the master data list, struck off companies since this 31/3/20, 21/18/19 will come there, sir. So we have to be extra cautious while doing the audit, because basically the entire first year is not different, because lots of the shell companies, the struck off companies are using for other purposes than for the purpose they were made. हाँ, तो नवनीत जी का भी ये क्वेश्चन है. नवनीत जी का कहना है प्लीज एक्सप्लेन, नवनीत जीरत जी प्लीज री एक्सप्लेन शेयर होल्डर एक्सेट्रा. मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी शेयर होल्डर्स लिस्ट देखेंगे तो उसकी शेयर होल्डर लिस्ट में हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो कि स्ट्रक ऑफ हो, जिसने कभी मेरी कंपनी में शेयर अप्लाई किए थे, पर आज वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई. एक केस मेरे को ऐसा आया था जिसके अंदर किसी ने मेरे को ये डिस्कस किया कि सर मेरी एक कंपनी है जिसमें 2 शेयर होल्डर हैं और दोनों ही कंपनियां दोनों ही स्ट्राइक ऑफ है. मैं कहा अच्छा पिछले साल एजीएम कैसे हो गई? अंडरस्टैंड? सो एजीएम कैसे हो? इट मींस एवरीथिंग इज शेल, एवरीथिंग इज शेल. सो व्हाट हैपेंस दैट दोस कंपनीज वेयर द कंपनीज आर नॉट एग्जिस्टिंग, दे आर स्ट्राइक्ड ऑफ. आई हैव टू गिव द डिटेल एंड वेयर द. देखो एक ये बाद का क्वेश्चन आता है, ये हमने तब भी डिस्कस किया था 2-3 साल पहले. अगर कोई मटेरियल, कोई भी इंपॉर्टेंट गुड्स सड़क पे मिलता है और उसका कोई भी ओनर नहीं होता, तो उसका ओनर कौन होता है? उसका ओनर होता है स्टेट. सो हियर देयर इज शेयर्स फॉर व्हिच देयर इज नो पर्सन हु इज एग्जिस्टिंग. कोई पर्सन है ही नहीं, स्ट्राइक ऑफ है. क्या उसका ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होगी? बिल्कुल होगी. तो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. हमने तब भी डिस्कस किया था, कुछ लोगों ने तब सब कुछ ठीक कर लिया था, पर कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बैलेंस शीट में देना पड़ जाएगा, नोट्स में देना पड़ जाएगा, इवन फॉर द शेयर होल्डर्स. सो इफ इट इज देयर, if it is coming in 21 going in the annual return, please see, nothing can be done.
it would be a pure intimation to the government, okay, come and take over. So please be very, very careful. अहमद भाई एक क्वेश्चन है मेरी। हाँ रमन भाई। सर एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी में अगर दे आर मोर देन 100 डेटर्स फॉर एग्जांपल, और सबके सब कॉर्पोरेट हैं, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू गिव अ डिस्क्लोजर कि कोई भी मेरी डेटर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ तो नहीं है। तो यानी अब ऑडिट के टाइम पर हमारे आर्टिकल्स को हर कंपनी के एमसी साइड जाकर चेक करना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी उसके स्टॉक ऑफ लिस्ट में तो नहीं आ रही है। You're right. अब ये बताओ सर मेरे को, आरओसी में स्टॉक ऑफ करने प्रोसेस क्या रहता है? क्वेश्चन मेरा इसलिए ये वाली है, मान लीजिए हमने जुलाई मंथ में ऑडिट किया, वहां पर देखा उस समय कि कोई भी कंपनी स्टॉक ऑफ में नहीं आ रही थी। जब ऑडिट की जब बैलेंस शीट सिग्नेचर कर रहे हैं, उसमें नजर में आ गई 3 कंपनियां जो स्टॉक ऑफ हो गई आरओसी में। यानी ऑडिट के पीरियड में और साइनिंग के बीच में ऐसी चीजें हो गई। रमन भाई देखो, रमन भाई आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये आरओसी अपने आप स्ट्राइक ऑफ नहीं करती। आरओसी अपने आप स्ट्राइक ऑफ तब करती है अगर उसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है फॉर द लास्ट 2 years एंड द रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड फॉर लास्ट 2 years। बोथ कंडीशंस हैव टू बी मेट। अगर उसका बिजनेस हो रहा है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो वो स्ट्राइक ऑफ नहीं होगी कंपनियां। सो प्रैक्टिकली नहीं होगा ऐसा। ये वही होंगे डेटर्स जो कि पुराने 5-6 साल से चले आ रहे हैं। नहीं, जो मेरे डेटर है उन्होंने अगर STK 1 फाइल कर दिया तो वो आएगा अंडर इंटरवेनिंग प्रोसेस। पीरियड। जब आप चेक करोगे 31 मार्च को अंडर प्रोसेस होगा, और वो जब अंडर प्रोसेस होगा तो अपने डेटर्स अपनी सारी एसेट्स लायबिलिटी नील करके फिर फाइल करते हैं। और बिजनेसमैन को नहीं पता हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कंपनी से वो काम भी नहीं करेंगे। सर जैसे अगर अनसिक्योर्ड लोन होंगे आउटस्टैंडिंग, ऐसा निकलता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में आउटस्टैंडिंग है डिपॉजिट फ्रॉम कंपनी, उस केस में क्या करना चाहिए फिर? और वो कंपनी ने कभी एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल ही नहीं करी, बट प्रमोटर्स एग्जिस्ट। प्रमोटर से लेना देनी है, कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कंपनी का स्ट्राइक ऑफ आ रहा है स्टेटस, उसने शुरू से आपने पैसे देने ही नहीं है, राइट इट ऑफ। इनकम में हाउ कैन यू कंटिन्यू? हाउ कैन यू कंटिन्यू? ये बताओ ना। देने ही नहीं है, किसको देने हैं? आप भी समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली तो यही है कि वो पैसे देने ही नहीं है ना। You have to write it off in the profit loss. इनकम में ही जाएंगे सर। Write it back. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर you cannot continue 21। आप सोचो अगर सर 21 में कंटिन्यू कर गया, 22 में रिपोर्ट करना है, क्या करोगे सर? अगर आप ये सोचो कि हम यही डिस्कशन 22 में कर रहे होते आफ्टर 21 की बैलेंस शीट के, तो क्या करोगे? 21 का तो आ ही जाएगा। Problem is with the company as well as the auditor. You cannot hide the facts. सर अगर जो है, अगर राइट ऑफ नहीं करती कंपनी, तो इट हैज टू बी क्वालिफाइड इन बाय योर नोट्स कि हाँ ये इतनी कंपनी है हमारे पास। It is not true and fair. Amounts are not stated. The figures are not stated. The amount at which they are receivable or payable, they are not payable. They are not receivable. Actually, they are not payable. Receivable किसको पे करना है? तब वो मतलब वो है कि अगर वो प्रमोटर कंपनी को रिवाइव बाद में कर लेता है तो ना आप उसको लेटर लिख के पूछो रिवाइव करने के लिए एप्लीकेशन लगाई क्या, लगा रहे हो क्या? Based upon that, your call would be there. राइट ऑफ कंपनी नहीं करती तो क्या वो है, लाइक अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज लार्ज एंड द कंपनी डज नॉट राइट इट ऑफ, the disclosure is, then what does disclosure we have to make in our report? Yes, we have to say that it is their assets are overstated and then not stated the amount, or liabilities are overstated at not at the amount at which they are actually payable. Mere disclosure of this amount is there as a stock payable to stock of company will not be sufficient. That वो तो नोट्स में दे देगी कंपनी। हाँ, ऑडिटर तो बोलेगा ना कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर नहीं है। नहीं उसमें इंस्टेड की इट्स नॉट ट्रू एंड फेयर, कैन वी डू इट लाइक दैट कि इतने इसमें स्ट्राइक ऑफ के कैरो में भी देना है इसको अलग से? सर देना ही पड़ेगा ना, कारों में भी पूछ रहे हैं, कारों में रेफर करूंगा मैं तो
प्योर बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर ओपिनियन की बात करूंगा ना, तो वहां पे तो लिखूंगा ही ना ट्रू एंड फेयर कैसे है, इतना पेबल है लोन, किसको पेबल है, कोई है ही नहीं। Pramodai, parallelly, I have to mention some other information. As of days, banks have become very aggressive for the KYCs for all the companies which are having no turnover. So in many cases, those all the skeletons are coming out also. यस, सो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। Certain more questions, practical experience we paid income tax scrutiny as rent payment was made to struck off company। हाँ सर, इस बार काफी सारे केसेस आए that the transaction is there with the struck off company, उस बेसिस के ऊपर बहुत सारे केसेस आए। Right for STK1 that company should have written off such amounts। Very right, जीरत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। Go to MC site, then MC services, then public notice as 248(2), you get the list of company strike off। Yes, सर आपको तो उसके MCA डाटा से ही मिल जाएगा ना, आपको वहां नहीं देखना, आप जाएंगे MCA डाटा में कंपनी का नाम सर्च करेंगे और उस नाम के सर्च के ऊपर बेसिस के ऊपर उसका सिन नंबर मिलेगा, उसका मास्टर डाटा से पता लग जाएगा स्ट्राइक ऑफ है कि नहीं। Manoj Shah ji, if 1 or 2 installment of repayment to loan bank is delayed, whether company considered as willful defaulter? No, no, it is not that way, Manoj Shah ji. It is where the RBI has got its total rules that where it says willful defaulter वो होता है जो कि जिसके पास पैसा और वो दे नहीं पाता, and RBI issues a notification of the list of willful defaulters, उसके अंदर उसका नाम होता तभी आएगा। Amodar Rawal ji, in case of struck off company shareholder, what to report and where? In cases, in the notes आपको देना पड़ेगा कि मेरी struck off companies के साथ क्या transaction है, तो वहां पे देना पड़ेगा as a relationship और क्या amounts है, तो current year, previous year. So this is given in Schedule 3 requirement. So based upon that, the auditor will have to give his view on the balance sheet, whether it is true and fair or not. Sanjay Gupta ji, in case shareholders are struck off companies, then how the company will show in the balance sheet and what is the responsibility of the auditor? Of course, it has to say that there are certain shareholders, कितने shareholders हैं, क्या है, क्या नहीं, shares का क्या होगा, auditor की responsibility होगी, वो सिर्फ अपना इसके अंदर एक अदर मैटर करते हैं क्योंकि बैलेंस शीट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर सारे के सारे शेयर होल्डर स्ट्रक ऑफ है तो उसको ऑडिटर अपॉइंट किसने किया, लेकिन अगर सिर्फ 2-3 ही है, बाकी सारे इंडिविजुअल है, सब सामने है, then it is a separate issue, then he will just make it as a other matter because it will not affect my true and fair view of the financial statement per se. This is my view. सर फॉरेन क्रेडिटर के अंदर भी राजेश जी, फॉरेन क्रेडिटर है तो भी एजिंग तो जाएगी ना, एजिंग में तो फॉरेन क्रेडिटर हो कुछ भी हो जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। क्वेश्चन है नहीं। गौरव जी कह रहे हैं नो नीड टू चेक ईच एंड एवरी कंपनी, वन लिस्ट, ऑल लिस्ट ऑन वन प्लेस। ग्रेट, जो भी तरीका हो, दिस इज वन ऑफ द वेज व्हाट गौरव बंसल जी हैज शेयर्ड दैट 248(2) के पब्लिक नोटिस में आप जाके चेक कर सकते हैं। सर हो सकता है किसी ने खुद स्ट्राइक ऑफ कराई हो, बट जो भी हो, दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन यूज एनी वे। गौरव जी हैज टोल्ड वन ऑफ द ये मैंने चेक भी कर लिया। How to make aging of customer-wise receivable in case of construction company? In my debtors, aging would be there. Through my computers, I can just see कितने साल का pending है. It is a pure accounting thing, mathematical thing can be done. I don't think so. Whatever there in the books of accounts, you have to do according to that. Right? Then any charges or satisfaction yet to be registered with the registrar of companies beyond the statutory period, these detail and reason thereof. देखिए charges registered और satisfaction को तो delayed के साथ हो जाता है, registration के लिए अब delayed allowed ही नहीं है। तो यहाँ पर it is clear cut inviting the MCA to take an action to levy the penalty. Delayed नहीं हो सकता आप registration charge create and take care specifically in case of loans against vehicles, क्योंकि vehicles के हम 4 रजिस्टर नहीं कराते, तो यहाँ पर नोट्स में आना पड़ेगा और ड्यूटी हो जाएगी ऑडिटर्स की चेक करने की। तो प्लीज चार्जेस क्रिएट करने का, सेटिस्फेक्शन करने का काम
बहुत ज्यादा चालू होने वाला है, जो मिस कर रहे हैं लोग बाग। Compliance with the number of layers of companies, that statement has to be given in the notes to the accounts. Compliance with the किसी का merger और demerger or any arrangements हो रही हैं, तो they have to give that the accounting in books कैसे हुई हैं, in that whether it is in accordance with the scheme or in accordance with the accounting standard, and in accordance with the accounting standard अगर कोई deviation है तो deviation बतानी है. So again, the responsibility is first of the management, second is of the auditor to ensure that it is done accordingly. Change in profit loss, total revenue जो head title था उसकी जगह total income आ जाएगी, and एक revenue from operations include करेगा grants, एक separate line item only for section 8 company. अगर किसी के यहाँ पे search हुई, उसने कोई इनकम सरेंडर की, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स, तो विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो क्या वो उसने रिकॉर्ड की कि नहीं की बुक्स के अंदर, कैसे की, वो डिटेल देनी है. क्योंकि ये ना कारों के क्लॉज 8 में था ऑडिटर से पूछने के लिए, तो ऑडिटर ने कहा भाई हम सब कैसे करेंगे, चेक करो कोई सर्च हुआ, सर्वे हुआ, उसने कुछ सरेंडर किया, कुछ डिस्क्लोज किया इनकम वीडीएस में या कहीं और, उसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग की, वो सेपरेटली जाएगी. तो कारों में भी है और प्रॉफिट लॉस के नोट्स के हिसाब से भी नोट्स में डालना कि कितनी इनकम उसने कैसे डिस्क्लोज की, ये डालना पड़ेगा. अब क्रिप्टो करेंसी पे आजकल काफी डिस्कशन चल रहा है. अभी थोड़ी देर पहले किसी एक मित्र से बातचीत चल रही थी इसके ऊपर कि वो क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहते हैं, तो अलाउड है कि नहीं इंडिया में. आई विल नॉट कमेंट अलाउड है कि नहीं है, बट हाँ आईपीएल में मैंने एड्स बहुत देखे जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन पूछा गया है इन शेड्यूल 3, कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, उसकी डिटेल देनी है, कितनी परचेज की, कितनी सेल की, कितना क्या कमाया. अगर किसी कंपनी ने किया तो शेड्यूल 3 में पूछ लिया. अगर गवर्नमेंट पूछ रही है इसका मतलब कि हाँ कर ही रही होगी. सीएसआर का पहले कुछ डिटेल थी, अभी सारी डिटेल जा रही है, और ये सारी डिटेल इसके हिसाब से मेरे कारों में भी क्वेश्चन है. कितना रिक्वायर्ड टू स्पेंड था, कितना एंकर किया, कितना शॉर्टफॉल था, प्रीवियस ईयर का कितना था, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, रिलेटेड पार्टी, ये पहले भी था बट अभी सब चीजें. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में वो ये कि आपका खुद का क्रिएटेड ट्रस्ट है उसको दे रहे हैं, या ट्रस्ट के अंदर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है उसको दे रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स. डिवीजन 2-3 के अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी की ऐड कर दी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये भी कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन है, दैट कैन बी डन ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड वैल्यू. सो रजिस्टर्ड वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी है कारो 1 के क्लॉज में भी. एंड डिवीजन 3 के अंदर रेशियोज इसकी जगह वो 11 नहीं होंगे, इन केसेस के अंदर इट वुड बी कैपिटल टू रिस्क एसेट, ये जो मेरे आरबीआई में जाते हैं. अब अपने पास टाइम बचा नहीं है टू टेक द डिपॉजिट्स. सर यू आर आर डिपॉजिटरी फिर ले लेंगे हैं सर, यू आर आर डिपॉजिटरी फिर ले लेंगे टाइम तो डिपॉजिट के लिए. हाँ फिर ले लेंगे सर टाइम, इस बहाने और टाइम मिलेगा सर हमें. नहीं बिल्कुल सही है. मैं सिर्फ एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, मैं पहले भी यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ कि दिस इज अ पोर्टल expertspannel.in, experts s आता है .in, anyone can register up here, sign up here free of cost. They can register as an expert or as a querist, और रजिस्टर होने के बाद उनको ईमेल में एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इट वुड बी उनका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन एनी ऑफ द कैटेगरीज, ऑन एनी ऑफ द कैटेगरीज. सर वहाँ नेगेटिव लिस्ट नहीं है, मैं कहा सर वहाँ नेगेटिव लिस्ट नहीं है, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो. हाँ कोई बिल्कुल सही कहा सर, कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है. किसी कैटेगरी पे कोई क्वेश्चन पूछ लो, इनकम टैक्स, जीएसटी, कैपिटल लॉ, आरबीआई, इंटरनेशनल टैक्स, और एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को भी सर्च कर सकते हैं. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन है, कैटेगरी वाइज यू कैन सी. नाउ नियरली 27,000 आंसर्स हैव बीन गिवन बाय मोर देन 115 एक्सपर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री. सो एनीवन कैन यूज दिस. इसका मोबाइल ऐप भी है, एंड दिस प्रेजेंटेशन आल्सो आई विल अपलोड ऑन दिस वेबसाइट lunawat.com, and also the free mobile app जिसमें ready to use charts और updates है, काफी लोग यूज कर भी रहे हैं. So anyone can use it, and in this pandemic remain, stay happy, safe and positive, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही हम इससे बाहर आ पाएंगे.
अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, अपने कोलीग्स का, सबका ध्यान रखें. एंड यू कैन जॉइन मी ऑन ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा. एंड I thank the Pusa Road CP Study Circle for giving me an opportunity to share my views. Just 1 or 2 minutes. एक आधा क्वेश्चन. In case of foreign creator, my query is related to verification of existence of the creator needs in reporting. KYC तो होती है, आप उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो हो सकता है ईमेल के थ्रू करा लें. सब फॉरेन क्रिएटर है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. FIRC या जो भी तरीका है आपको उसी तरह से करना पड़ेगा राजेश जी. अब पुराना चला आ रहा है तो पेबल है कि नहीं है, फेमा की गाइडलाइंस क्या सप्लाई किया क्या नहीं किया वो सब चेक कीजिएगा. उसका बिल ऑफ एंट्री था क्या नहीं था, कितना पुराना है. वी नीड RBI compliance for that. Thanks Rajiv bhai. ROC chart should be created on vehicle loan. Yes, it has to be created on vehicle loan. Any asset of the company, a charge is there, you have to create, there is no option. अमन जी कह रहे हैं only because of DPT3 I joined. सर DPT3 मेरा ना दूसरा सेशन चालू होने वाला है. मैं चिरपन का भी मेरे पास फोन आ गया. I am so sorry अमन जी, मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी से आ जाऊंगा, दोबारा बता दूंगा सर. Thank you sir, thank you very much. And without taking much time, I request Rajiv Kohli ji, please present a formal vote of thanks. Over to Rajiv Kohli sir. Dear Pramod, it's always a pleasure to have you here. Pramod is totally dedicated to the profession and the one person who will respond to you by the end of the day. Even if he's busy, but you'll receive a call before the end of the day. That's a guarantee I'm taking. Every time you ask any query, and plus the experts panel is huge knowledge sharing for the entire profession. And sir, have a pleasure starting from the budget speech from a small company definition change to the various OPC, no limitations, and the best part was succession plan. Sir, because succession plan is the most important thing, people forget about that. And there is so much chaos post the unfortunate demise of the person. Especially in these COVID times, it's a very essential thing that we do our succession planning. I think this is a very nice opportunity to do the merger of two small companies. Then the additional fees have been paid off, and the basic changes in the Schedule 3 are very thin because no business as usual is not there anymore. We have to be very transparent. You can't go to the gray areas anymore. Everything will be in a black and white. What is there specifically has to be specified there, because it's going to become some corroborative evidence will come which will go against you. So while auditing and by signing your report, we have to be very careful. Thank you, Pramod bhai, once more from the core of our hearts. And looking forward to meet you soon for the DPT presentation. Anytime, sir. Anytime. सर वो मेरे को PPT भेज देना, मैं सर लोगों के साथ शेयर कर लूंगा सर. सर मैं अभी एक आधे घंटे के अंदर I'll upload on lonavar.com, वहां से कोई भी डाउनलोड कर. मेरे को सर स्पेशली भेज देना, मैं लोगों को भेज दूंगा. मैं आपको लिंक भेज दूंगा सर, 1 मिनट. डन. थैंक यू एवरीवन. कल हमारा वेबिनार है 2:30 बजे. CA Guruis Ahuja ji will be the speaker. So I request all of you please join us. थोड़ी देर में उसका मैं लिंक क्रिएट करके भेज दूंगा सबको. ठीक है सर. With this, thank you. हाइपर एक्टिव हो गए हो. हैं? ज्यादा ही एक्टिव हो गए सर. सर क्या करें, अब तो लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब कराओ. मैं कहा चलो कर देते हैं सबके लिए, और क्या है. ये डेली रूटीन बन जाना है. हाँ, डेली रूटीन ही बन गया. अब 6 तारीख तक डेली वो होता है ना करोड़पति वाला 9 बज गए कि अब ये 4 बज गए कि सर हेमंत जी, जो आपने कहा ना, वो एक सीरियल खत्म होता है उसके नीचे आता है टू बी कंटिन्यूड. तो सर ने, राजेश सर ने बिल्कुल लास्ट में टू बी कंटिन्यूड की जगह ऐड कर दिया कि कल 2:30 बजे फिर मिलेंगे. सर अब इतनी नेगेटिव लिस्ट आई, रोज नहीं है, बाकी रोज के रोज है.